Hello students, welcome back to the Tantra physics classes, and today I will start collisions and it will take me a few lectures, and finally I will discuss some problem sets, a few problem sets, 3 lectures, some problem sets, and you can download the objects and the problems from my application because I am doing only those problems and those examples which are there in the application. So it's very important for you to download literature from the application so that there's a consistency. What we learn here, what you get there. Okay, collisions. First of all, what is a collision? Collision आप आम लफ्ज में जो अंडरस्टैंड करते हैं, the two bodies hit each other, they strike against each other. A bus colliding with a car colliding with another car. So that's a general notion, general concept of a collision. But almost the same concept is in physics. But in physics, we always try to put things in figures, in concepts. What we say when two bodies collide, two bodies are said to collide when they hit each other. That is true. Physically hit each other and change each other's momentum or exert force on each other. That's all. Two bodies hit each other, they change each other's momentum. इस बॉडी ने इस बॉडी का मोमेंटम चेंज किया है, तो अगर इस बॉडी ने इस बॉडी का मोमेंटम चेंज किया, समझो इस बॉडी का भी मोमेंटम चेंज होगा इस बॉडी की वजह से. So the definition is like this: when two bodies are said to collide with each other if they change each other's momentum by exerting forces on each other, and the collision is only when they have physical contact. There may be other ways in which momentum is changed. One particle change the momentum of other particle. Like electron moves in the field of proton or in the field of positive charge, it gets deflected. तो उससे भी उसका momentum change होता है. But there is no physical contact in that case. Momentum is changed. They also exert force on each other. These particles, basic elementary particles, electron or proton. But they don't have a physical contact like this. Therefore, that's called scattering. You can't call that a collision. It's a collision through field, and that is scattering. You see, collision, when bodies or particles hit each other physically and change each other's momentum, then they are said to collide with each other. That's the definition of collision. Now, what is elastic collision? Elastic collision is one, you see, when two bodies hit each other, obviously they change each other's momentum and total momentum remains conserved of the system of both the bodies. अगर एक बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज होता है, उसी दौरान दूसरी बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज होता है, तो total momentum is conserved in all sorts of collisions. Total. Sum of the two momenta before the collision and sum of the two momenta after the collision is the same. And elastic collision is one in which the kinetic energy is conserved. I can give you the few examples of elastic collision. जैसे a billiard ball hits another billiard ball. They smoothly hit each other and deflect. Their kinetic energy before the collision, sum, is equal to their kinetic energy after the collision, sum. They don't lose their kinetic energy. I can give you one more example. Suppose I have a billiard ball or a rubber ball. I hit it on the wall. I get it back. I get it back with the same kinetic energy. There's no loss of kinetic energy during the collision there when it hits the wall. That is elastic collision. Billiard balls hitting each other. अच्छा, मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा. जैसे एक पत्थर को मैं वॉल पर फेंकूंगा, it won't come back with the same kinetic energy. It will drop there. So most of the kinetic energy gets lost there. So what is the definition of elastic collision? Elastic collision is one in which the kinetic energy is conserved. The kinetic energy of two bodies before the collision is equal to sum of the kinetic energies of the bodies after the collision. वैसे एक बॉडी का kinetic energy lose होता है. There is the exchange of kinetic energy. When a body hits, it may give its kinetic energy to another body.
When it loses some kinetic energy, it gives that kinetic energy in another body. So what is important is that sum of the two kinetic energies before is equal to sum of the two kinetic energies after. That is very important. ऐसा नहीं कि kinetic energy of either body is conserved. So it is a total conservation. So momentum is conserved anyway. Momentum का conservation is a general law of physics. The momentum before the collision is equal to momentum after the collision. Okay. Now, you see here I have written it. Elastic collision. When collision is said to be elastic. Collision is said to be elastic when total kinetic energy and total momentum of the bodies are conserved. So what is the inelastic collision? Inelastic collision is just the opposite of elastic collision. Inelastic means when kinetic energy is lost. You throw a body on the wall, lot of maybe heat is generated, maybe sound is generated, and the body does not come back with the same kinetic energy. There's two cars come in the opposite direction, they collide, they crash into each other. They crash into each other, two cars coming in the opposite directions. All of their kinetic energy goes. जो इस कार का kinetic energy था और इस कार का, it just converts into heat and maybe potential energy within the springs within the car. जो कार के अंदर springs वगैरह होंगे तो उनको they get compressed, maybe most of the kinetic energy gets converted into potential energy and maybe heat energy, maybe some sound energy, but kinetic energy is lost. That is inelastic collision. That is all. But momentum is conserved anyway. In all types of collisions, momentum is conserved. So, inelastic collision is said to be inelastic if total kinetic energy of the body is not conserved. However, momentum is conserved in all sorts of collisions. This is the theory of collisions. When two bodies collide, the collision is elastic, the kinetic energy and momentum before and after the collision of the bodies remain the same. In case of inelastic collision, the kinetic energy is lost, but the momentum of two bodies together before and after is the same. That is all. Okay. Now this was point number 1. I was discussing these 3 points. It was all point number 1 under the heading of this, and this. Okay. Now let me go to very important point, one-dimensional elastic collision. One-dimensional elastic collision. One-dimensional elastic collision. One-dimensional elastic collision. क्या होता है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज? दो बॉडीज में लेता हूं. I already told you in elastic collision kinetic energy is conserved and momentum is also conserved of total system of two bodies, not of either. Okay. तो पहले वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है उसका भी एक डेफिनेशन है. वन डायमेंशनल के लिए भी एक डेफिनेशन है कि व्हेन वी से द कोलिजन इज वन डायमेंशनल, व्हेन वी से कोलिजन इज टू डायमेंशनल, व्हेन डू वी से दैट? सो वन डायमेंशनल कोलिजन की बात मैं करता हूं. ये एक बॉडी है, इसका मास m1 समझो और वेलोसिटी u1 समझो, और ये बॉडी दूसरी बॉडी है यहां, इसका वेलोसिटी u2 समझो और मास m2 समझो. ये बॉडी इस बॉडी को नेग्लेक्ट अबाउट द ग्रेविटी, स्पेस में ही समझो मगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करो, समझो ग्रेविटी इज नॉट एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज, या ये दो बॉडीज किसी सरफेस पर हैं और ये इस बॉडी को हिट करता है. पहली बात यह है क्या, when do you think that this body is going to hit this body? Yes, when u1 is greater than u2. अगर u1 कम होगा तो ये तो बॉडीज रेसिड हो जाएंगे, ये तो दूर दूर ही जाएंगे, हिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. तो अब ये बॉडी इसको हिट करता है. Is this one dimensional collision? The answer is yes. Why? Because the velocity of the two bodies, see here, u2 and u1, these are the velocities of the two bodies before the collision. They are along the line joining the centers of the two bodies. जब दो बॉडीज का सेंटर में कनेक्ट करता हूं, ये सेंटर और ये सेंटर जब मैं एक लाइन से कनेक्ट करता हूं, ये दोनों वेलोसिटीज उसी लाइन के ऊपर है. बात समझो.
जो ये दो बॉडीज है, इन दो बॉडीज का जो वेलोसिटीज है वो उस लाइन के अलोंग है जो लाइन मैंने इस बॉडी और इस बॉडी को कनेक्ट करने से हासिल किया. So that is why this is one dimensional collision. So one dimensional collision ये होता है when the velocities of the two bodies is along the line joining the centers of the two bodies. Right? तो समझो यहां collision हो गया, यहां collision हो गया M1 और M2 के दरमियान. जब हिट होता है दिस विल हिट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर हिट करेगा, तो इस पर फोर्स होगा F21 और टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो इस पर फोर्स होगा F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू द फर्स्ट. ये देखो ये कोलिजन यहां हो गया. समझो जब कोलिजन हो गया दे विल सेपरेट बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक, दे विल नॉट सिट टुगेदर. द मोमेंट दे सिट टुगेदर काइनेटिक एनर्जी लूजेस which is not the condition. The condition is elastic. So they have to separate. After separation, they move like this. This body, इस बॉडी का वेलोसिटी पहले u1 था और इसको बैक हिट होने से F12 जो बैक हिट उसको होता है तो ये वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी हो जाता है v1. और चूंकि इट इज दिस सेकंड बॉडी इज हिट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको आगे की ओर पुश मिलता है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2. और ऑब्वियसली ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये कम होगा. यानी कि अब ये दूसरा कोलिजन करने वाले तो है नहीं क्योंकि ये रिसीड हो जाएगा, ये आगे की ओर फास्टर चल रहा है, ये स्लोअर चल रहा है, तो इनके दरमियान जो गैप है वो बढ़ता ही जाएगा. यहां ये ज्यादा है, इसके दरमियान गैप कम होता जा रहा है तो यहां हिट करेगा. ओके तो क्या मुझे बताइए क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा इस बॉडी का? द आंसर इज यस, क्योंकि इस पर फोर्स है. क्या इस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा? द आंसर इज अगेन यस, बिकॉज इस पर भी फोर्स क्रिएट हुआ है. ठीक, दोनों बॉडीज का मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन देखो इसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ, इसका डिक्रीज होगा. टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, नॉट ऑफ आइदर बॉडी. यू कैन नॉट से m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1. नो, दैट इज नॉट द केस, बिकॉज एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है. मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा वो दो बॉडीज का टुगेदर रहेगा कंजर्व. दो बॉडी का सम ऑफ द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, बिकॉज यू सी इस पर फोर्स है, इसका मोमेंटम चेंज होगा, इस पर भी फोर्स है, इसका मोमेंटम भी चेंज होगा. इसका इंक्रीज हुआ, इसका डिक्रीज हुआ. दैट्स व्हाई द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. रहना भी चाहिए क्योंकि अगर इन दो फोर्स का सम लिया जाए F21 प्लस F12 वो जीरो हो जाएगा. वजह दिस फोर्स एंड दिस फोर्स टुगेदर इन द टोटल सिस्टम दे कैंसल आउट. तो ये मिसकंसेप्शन मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि सब जब हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल मोमेंट इज कंजर्व इन द कोलिजन, समटाइम्स यू फील शायद ये मोमेंटम कंजर्व रहता है इस बॉडी का या इस बॉडी का. ऐसा कुछ नहीं है, बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ सम ऑफ द बॉडीज मोमेंटम कंजर्व रहता है. चलिए, दिस इज वन डायमेंशनल कोलिजन. और वन डायमेंशनल कोलिजन का और एक प्रॉपर्टी ये होता है द टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन. वन डायमेंशन, एक ही लाइन के अलॉन्ग वो मूव करते हैं, वो भी एक चीज है. चलो, व्हाट आर द इक्वेशंस दैट आई कैन राइट फॉर दिस काइंड ऑफ कोलिजन व्हिच इज इलास्टिक इन वन डायमेंशन? Because you know in collisions, in elastic collisions, both kinetic energy and momentum is conserved. तो अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लिखना चाहता हूं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके बराबर, क्या लिखूंगा इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का? m1 u1 ये मोमेंटम प्लस m2 u2 दोनों का मोमेंटम सम करके इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. एरो लिखने की जरूरत नहीं है, वन डायमेंशन में वेक्टर नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं होती. अच्छा, ये ठीक है. अच्छा, अब ये मत समझना m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1. नो, इट मे बी 3 प्लस 2 एंड इट मे बी 2 प्लस 3. दैट इज इट. सम ऑफ द टू मस्ट बी सेम. और दूसरा इक्वेशन लिखना चाहूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. उसका क्या लिखेंगे? शाबाश, 1/2 m1 u1 स्क्वायर
प्लस 1/2 m2u2 इज इक्वल टू, चलिए ये तो हुआ सम ऑफ द टू काइनेटिक एनर्जीज बिफोर द कोलिजन। जब कोलिजन हो गया उसके बाद क्या है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m1v1 प्लस 1/2 m2v2, खत्म। यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। दैट्स ऑल। तो जो भी वन डायमेंशनल कोलिजन का फिजिक्स है या उसका मैथमेटिक्स है, सिर्फ इन दो इक्वेशन से हासिल होता है। अब इस सूरत में मुझे क्या चाहिए, जो पहला बॉडी है ये वाला बॉडी, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है आफ्टर द कोलिजन, जो दूसरा बॉडी है इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है आफ्टर द कोलिजन। यस, this is a question that can be asked and I will get the answer from these two equations. इन दो इक्वेशन से आंसर मिलेगा, सॉल्व करने से, 2-3 स्टेप में सॉल्व करने से इन दो इक्वेशन से सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन नीट और आईआईटी में वो नहीं किया जाता है, वो तो 11th क्लास का कोर्स होता है जहां टीचर जो होते हैं वो सारा कुछ आपको डिराइव करके देते हैं और आप याद भी रखते हैं और डेरिवेशन भी करते हैं और उसका एग्जाम भी शायद आप बाद में लेते हैं इन द फाइनल एग्जाम्स ऑफ 11th क्लास, जहां आप पास होकर भी आते हैं। So that is not our job to solve these two equations to get the answers. I will write down the answers and possibly I will give you the feel why why we have that answer, why we have those answers, if I could. Okay. Now, using these equations, जो पहला चीज हमें साबित होगा, जो पहला चीज हमें मिलेगा इन दो equations को यूज करने से, है तो दो ही equations. You don't need to remember too many equations about one-dimensional collision. These two equations will give you the answers, right? Okay. अब जरा देखो, इंटरेस्टिंग चीज, जब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पहला चीज जो हमें मिलने वाला है, इन दो वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है u1 माइनस u2, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस वेलोसिटी से ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी इस u1 से नजदीक आ रहा है, u1 माइनस u2 से। अगर u1 और u2 सेम है तो उनका जो दरमियानी फासला है, दरमियानी फासला जो इनमें है वो कांस्टेंट रहेगा। दे विल नॉट कम क्लोजर, सो इट इज शुड बी मोर। सो v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस वेलोसिटी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, v2 minus v1, velocity of recede. It is velocity of approach or this is velocity of recede. जिस वेलोसिटी से पहले एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे उसी वेलोसिटी से ये एक दूसरे के दूर जा रहे हैं बाद में आफ्टर द कोलिजन। That's very interesting. मतलब अगर if you are very quick to make friendship with others, समझो कि बाद में आप जल्दी जल्दी एक दूसरे के दूर भी हो जाएंगे। Don't be quick to make friendships in real life. So जिस वेलोसिटी से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं उसी वेलोसिटी से ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक, this is the first thing that we can prove from those two basic equations. Because I am not deriving, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशन है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ रिसीड। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये v1 का इक्वेशन लिखूंगा और v2 का इक्वेशन लिखूंगा, वो भी उन्हीं दो इक्वेशन से मिलेगा। पहले ये मिलेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करके बैक एंड फोर्थ तीन इक्वेशन को यूज करके, फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन, इन तीन इक्वेशन को यूज करके हमें v1 और v2 मिलेगा। ठीक, चलो ओके। नाउ व्हाट इज v1? v1 हमें मिलेगा, देखिए मैं बताता हूं, v1 हमें ऑब्वियसली v1 should be we should get v1 in terms of u1 u2 m1 m2 because these are the things which are given the initial conditions before the collision. Before the collisions, these are the things that is supposed to be given to you. But sometimes they give you final velocity and ask you to find initial velocity. But we have to get final velocities v1 and v2 in terms of these initial velocities.
and masses. These are the things that you are supposed to know or you are supposed to be given. यह दिया हुआ होगा तो क्या लिखूंगा V1? Yes, what is the equation? M1 minus M2 by M1 plus M2 multiplied by this U1 plus okay twice M2 by M1 plus M2 multiplied by U2. That's it. याद तो रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. It is the final velocity after the collision of the first body. After the collision, this body gets this velocity. And what about the second body? V2. That is 2 times M1 by M1 plus M2. Exchange these, get this to this position with M1 and U1 plus इसको वहां ले जाइए with M2 पहले, M2 minus M1 by M1 plus M2 U2. It is initial velocity of the first body, it is initial velocity of the second body. It is final velocity of the first body, it is final velocity of the second body. These are the set of equations that you need to remember. बस इसी से सब कुछ हो जाएगा. These are the set of equations. So what you have learned in one-dimensional motion. What is one-dimensional motion? When the two bodies before and after the collision move in the same straight line. उसे क्या मिलता है? You need to know that kinetic energy and momentum is both conserved. Momentum is conserved anyway in all sorts of collisions, but kinetic energy is conserved in elastic collisions. During inelastic collisions, जो collision elastic ना हो, inelastic हो, उसमें kinetic energy loss हो जाता है पूरा, या पूरा नहीं, partially भी loss हो सकता है, या पूरा loss भी हो सकता है. That's called absolutely inelastic collision, perfectly inelastic collision. एग्जाम्पल ये है कि आपने एक बॉडी को, स्टोन को वॉल पर फेंका, हिट कराया स्टोन को, तो दैट ड्रॉप्स देयर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी मोस्टली लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है. ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड, मे बी ड्यू टू साउंड प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू डेंट इट प्रोड्यूस्ड ऑन द वॉल. उन सब चीजों से उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है. ओके, नाउ इसका मैं अब देखो, मैं आई वांट टू यूज दीज इक्वेशन सो दैट यू हैव ए फील ऑफ दिस इक्वेशन. क्या होता है इन रियल टाइम सिचुएशंस, इन रियल टाइम प्रॉब्लम्स क्या होता है, व्हाट डू दीज इक्वेशंस मीन. थर्ड पॉइंट, स्पेशल केसेस में क्या, देखिए सपोज मैं एक ह्यूज बॉडी है, M1 बॉडी विद वेलोसिटी U1, इट हिट्स ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास M2 एट रेस्ट. हिट करेगा इस स्मॉल बॉडी को. व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? कोई भी अगर मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये इट इज समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, यू डू हैव ए फील अबाउट इट. तो जैसे मैं कहूंगा इस बॉडी ने इसको हिट किया, तो क्या कहेंगे आप? ये बॉडी का ह्यूज है, इसका वेलोसिटी U1 ही रहेगा, ये आगे ही जाएगा विद द सेम वेलोसिटी. और ये छोटा बॉडी क्या करेगा? इसका वेलोसिटी चेंज. एक पहाड़ जैसा बॉडी, ह्यूज जायगेंटिक बॉडी हिट्स ए स्मॉल लिटिल इंसेक्ट या लिटिल बिलियर्ड बॉल, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, और इट विल बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ग्रेटर देन U1 ऑब्वियसली, बिकॉज इसको तो आगे ही जाना है, तो आगे जाने के लिए U1 से ज्यादा होगा. आई डोंट नो हाउ मच विल इट बी 2 times U1 और 3 times U1, वो तो उसका फैसला इक्वेशन करेगा, लेकिन कम से कम कुछ तो आपके कुछ रफ आइडिया होगा आपके दिमाग में कि ये हिट करने से क्या होगा. ये हिट करने से इसका तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, और ये आगे जाएगा विद वेलोसिटी ग्रेटर देन U1. कितना होगा? दैट इक्वेशंस विल डिसाइड.
वैसे पता ही होगा स्टूडेंट्स को, इट विल बी ट्वाइस u1, बट लेट द इक्वेशंस डिसाइड दैट. ओके, नाउ लेट मी गो टू द इक्वेशंस. इसका फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा और मुझे लगता है वो u1 के बराबर ही निकलना चाहिए. हैव अ लुक, बट हियर m1 इज ग्रेटर देन m2. ये इक्वेशन को यूज करके, ये कंडीशन यूज करके मैं उन्हीं इक्वेशन को यूज करूंगा जो मेरे पास अभी है. व्हाट इज दैट? v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus something here that you know. चलो लिखता हूं 2m2 by m1 plus m2 u2. ये तो हो गया 0 because of this. So v1 is equal to m1 is huge. इसको नेग्लेक्ट करो, इसका कोई अहमियत नहीं है इसके मुकाबले में. सपोज इट इज 1000, इट इज 1, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड. सो ऊपर m1, नीचे m1 by u1, खत्म u1, आंसर. सो इट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी u1, सेम डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव निकला, यानी कि आगे ही चला जाएगा. अगर ये नेगेटिव निकलता तो वापस आ जाता, मतलब उसका मतलब यह होता था कि इट हैज कम बैक. लेकिन व्हाई शुड द इक्वेशन गिव अ रॉन्ग आंसर और एनी आंसर व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू योर, मतलब टू योर आइडियाज इन योर माइंड, to your what you feel. It shouldn't give such an, because common sense sometimes gives correct answers. You can use common sense here and it will be the same thing as you feel. Anyway, अच्छा, what about v2? चलो v2, मुझे लगता है इसका वेलोसिटी जो होगा u1 से ज्यादा होगा क्योंकि it will be hit in the forward direction, वो ज्यादा ही आगे चलेगा. Let us see what is it. It will be twice m1 u1 by m1 plus m2. चलिए प्लस, मैं 0 लिखूंगा क्योंकि इसमें u2 तो होगा, तो 0 लिखो. अब क्या लिखना है, सारा एक्सप्रेशन और फिर 0 बना दो. सो इट विल बी v2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 u1 बाय m2 को नेग्लेक्ट कर लो तो m1 ही रहेगा यहां पर, क्योंकि m1 इज वेरी वेरी स्मॉल, m2 इज वेरी स्मॉल बिकॉज m1 इज ह्यूज. So it is equal to u1, answer. So the second body will be moving in the forward direction with twice u1 velocity. That's it. ये पहला स्पेशल केस था. A huge body hits a small body. अच्छा, अब मैं करूंगा उल्टा. A little body hits a huge body using the same equation and getting the answers from the equations. Let us see what happens. देखते हैं. अच्छा लगेगा if the answer is already in your head and equations give you the same answer. You feel a little more confident about the equations that you are using. Okay, चलिए सेकंड एप्लीकेशन. थर्ड का सेकंड एप्लीकेशन. चलिए मैं लिखूंगा ऐसे. ओके, ए लिटिल बॉडी, वो लिखने में भी ए लिटिल बॉडी हिट्स ए ह्यूज बॉडी, लेकिन दिखाने में भी वही है. इट्स ए ह्यूज बॉडी, इट्स ए लिटिल बॉडी विद वेलोसिटी u1, मास m1 and इट्स ए ह्यूज बॉडी m2 और उसका जो वेलोसिटी है u2 दैट इज 0. लेट मी सपोज एक ही जगह है ये बॉडी. तो क्या लगता है आपको होना चाहिए? मुझे लगता है ये बॉडी आगे जाएगा हिट करेगा, क्योंकि आगे जाकर बड़ा ह्यूज बॉडी है, उनसे माउंटेन जैसा बॉडी है. मुझे लगता है या वॉल हो, तो मुझे लगता है ये बॉडी वापस ही आएगा. इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होगा. दैट इज व्हाट इज मतलब एविडेंट. और शायद वो वेलोसिटी जो इसका होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना ये u1 है. सो आई थिंक इट विल कम बैक विद द सेम स्पीड, नॉट विद द सेम वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी विल रिवर्स. वेलोसिटी सेम तो होगा नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना, स्पीड सेम होगा. और इसका क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी? मुझे लगता है इसका फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा क्योंकि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं इलास्टिक कोलिजन में. ओके, let me find out. v1 is equal to, okay, twice m1 minus m2. यहां m1 is less than m2. ये कंडीशन हम लगाते हैं. m1 plus m2 into u1, अभी जो हमने इक्वेशन वहां डेवलप किया, twice m2 u2
बाय m1 प्लस m2। ये तो 0। v1 किसके बराबर? चलो अब क्या बहुत ज्यादा है, m1 ज्यादा है ना, m1 बहुत कम है, m2 ज्यादा है, तो अब m1 नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस m2 ऊपर, ये नेगलेक्ट हो गया, m2 नीचे, u1 खत्म हो गया, तो माइनस u1। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज द सेम, बट इसका फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव ऑफ दिस है, इसका नेगेटिव, इसका मतलब ये वापस आ गया। फाइनल वेलोसिटी इज द नेगेटिव ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसका उल्टा है, तो वापस आ गया समझो, मगर स्पीड सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। चलो v2 देखते हैं, इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज ट्वाइस m1 u1 बाय m1 प्लस m2 प्लस, ओके जो भी हो यहां पर, चलो लिखता हूं m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 u2, ये हो गया 0। और v2 किसके बराबर बताइए? चलो 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 अब कैसे इसको करेंगे? तो m2 इज m1 इज वेरी वेरी स्मॉल, m2 इज ह्यूज। चलो मैं एक काम करता हूं टू मेक इट इजियर सो दैट यू कैन सबस्टिट्यूट वेरी नाइसली। ट्वाइस u1 डिवाइड बाय, मैंने यहां m1 डिवाइड किया ऊपर न्यूमरेटर को, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर किया डिवाइड तो ये हो गया, नीचे करूंगा डिवाइड तो 1 बाय m2 बाय m1 हो गया। तो v2 इज इक्वल टू ट्वाइस u1 1 प्लस, इट इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, m2 is very very huge, m1 is very very small, so this quantity tends to infinity। a huge quantity divided by a very small quantity, जो नीचे क्वांटिटी that tends to 0, ये m1 tends to 0, स्मॉल है ना as compared this, तो इसका रेशियो इन्फिनिटी हो जाएगा। so it is something divided by infinity tending to 0, anything divided by infinity plus 1 that is infinity tends to 0। so v2 ये इसका वेलोसिटी अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 है। इट टेंड्स टू 0 बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। ओके, ये हुआ थर्ड। चलो सेकंड, थर्ड एप्लीकेशन। अब क्या आपने सीखा? एक स्मॉल बॉडी हिट्स अ ह्यूज बॉडी, इट विल कम बैक विद द सेम स्पीड, रिबाउंड हो जाएगा और उसी स्पीड से वापस आएगा जिस स्पीड से यहां से गया था। और क्यों ना होगा? क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu1 से कह रहे हैं, वापसी पर भी इसका काइनेटिक एनर्जी इतना ही होना चाहिए। इट शुड नॉट लूज द काइनेटिक एनर्जी व्हाइल हिटिंग, बिकॉज इट हैज नॉट गिवन एनी काइनेटिक एनर्जी टू दिस ह्यूज बॉडी, क्योंकि ह्यूज बॉडी का फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0। इनिशियल भी इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, वो फाइनल भी 0 है, तो इसी को कुछ करना पड़ेगा, अपना काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना होगा, ताकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर। अच्छा, थर्ड पॉइंट, मतलब थर्ड स्पेशल केस। चलिए और एक चीज मैं आपको बताता हूं। सपोज ये दो बॉडीज है, इसका मास m है और इसका मास भी m है, और इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है ये, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। तो they will hit here and finally they will separate। m1 ये v1 होगा, m2 सेम m, तो ये v2 होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, स्पेशल केस कुछ ऐसे है कि दो बॉडीज का मास सेम है एंड दे मेक हेड ऑन कोलिजन, they make one dimensional collision, their velocity is along the line joining their centers। head on collision भी वही होता है, head on collision भी वही होता है, और one dimensional collision भी वही होता है, और उसका कंडीशन ये है कि they before and after they move in the same straight line and their velocities is along the line joining their centers। किसी तरीके से, ठीक है ना? ओके, नाउ व्हाट इज v1? ये v1, चलो मैं तो ऐसे ही लिखता, लेकिन नहीं, मैं करूंगा v1 इज इक्वल टू, लेकिन v1 निकालूंगा, v2 ऐसे ही लिखूंगा मैं फिर। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस ट्वाइस m1 बाय m1 प्लस m2 u2। v1 इज इक्वल टू, m और m सेम है, ये 0 हो गया, प्लस 2m
डिवाइड बाय m और m2m u2, वो v1 इज इक्वल टू u2। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, ये देख, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, राइट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। जो सेकंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन, यही फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी बन जाता है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। इसी तरह से अगर मैं u2 निकालूंगा, v2, दैट विल बिकम u1। तो देख सकते हैं आप, यूज द इक्वेशन एंड गेट द आंसर, इट विल बी v2 इज इक्वल टू u1। तो मतलब क्या निकला इसका? मतलब यह निकला, जब दो बॉडीज ने हेड ऑन कोलिजन किया, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू बॉडीज हैविंग द सेम मास, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। वो एक दूसरे के साथ वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं। ये अपना वेलोसिटी दूसरे को देता है और दूसरा अपना वेलोसिटी पहले को देता है। So that it means, that simply means the two bodies exchange their velocities. The two bodies exchange their velocities after the collision. After the collision. राइट, ये हुआ थर्ड। फोर्थ भी देना चाहता हूं मैं, फोर्थ को भी मैं देखना चाहता हूं। फोर्थ एग्जाम स्पेशल केस, फोर्थ स्पेशल केस, दैट इज ए लिटिल ट्रिकी एंड दैट वी हैव टू डू सम मैथमेटिक्स। ओके, करता हूं मैं। दैट इज ए लिटिल ट्रिकी, आई वांट टू डू दिस मैथमेटिक्स सो दैट यू लर्न समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेरिवेशन। डेरिवेशन भी कितना है? 2-3 लाइन का बस। थर्ड, फोर्थ, यस, जस्ट फोर्थ। ये बॉडी है, लेकिन जो ये एग्जाम्पल है, इट विल कम इन द 2 डायमेंशंस। मैं इलास्टिक कोलिजन ही करूंगा, लेकिन 2 डायमेंशन में हो जाएगा, इसलिए आई हैव टू वेट टिल यू गेट मोर एक्सपीरियंस विद द कोलिजन्स। चलो दिखाता हूं, फिर भी अगर नहीं भी समझ आया ये तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिपीट करता हूं। ये बॉडी है, इसका वेलोसिटी u1 समझो, मास m है, ये दूसरे बॉडी को हिट करता है, इस बॉडी को, लेकिन ये बॉडी रेस्ट में है। हिट यहां किया तो इस वक्त सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस लाइन है, द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज नॉट अलोंग दैट लाइन, सो इट विल नॉट बी ए हेड ऑन कोलिजन। ये हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी यहां हिट करेगा, इधर जाकर के हिट करेगा, इधर जाकर के हिट करेगा। ये इसका मतलब एक हेड ऑन कोलिजन नहीं है। हेड ऑन कोलिजन के लिए इसका वेलोसिटी इस ओर होना चाहिए, इस लाइन के ओर होना चाहिए, अलोंग द लाइन जॉइन देयर सेंटर्स। तो ठीक है, आगे जाकर के क्या होगा इन दो बॉडीज का? ये बॉडी जो है, पहला बॉडी, ये यहां के ओर जाएगा विद वेलोसिटी v1, और ये दूसरा बॉडी जो है, ये वाला बॉडी, ये यहां के ओर जाएगा विद वेलोसिटी v2। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनके दरमियान जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, ये 2 डायरेक्शंस में जाएंगे। ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाता है, ये 2 डायरेक्शन में जाएंगे। एक इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरी, ये देखो, ये इट विल बी हिट लाइक दिस एंड इट विल गो लाइक दिस। तो आखिर में ये इधर से और ये इधर से जाएगा। तो मैं साबित करना चाहूंगा इट इज ए 90 डिग्री एंगल। सो व्हेन 2 बॉडीज मेक इलास्टिक कोलिजन, when 2 bodies having the same mass make elastic collision and one of the bodies was at rest before the collision, they diverge at an angle of 90 degrees. याद रखो तो अच्छी बात है, साबित करने की बात तो दूसरी है, लेकिन पहले याद ही रखो। क्या रखेंगे याद? when 2 bodies make elastic collision, having the same mass, 2 bodies have a collision, one body is already at rest, other body hits it and they diverge at an angle of 90 degrees, provided the collision is not head on, collision is oblique, 2 dimensional. ये collision head on नहीं। तो कैसे साबित करेंगे? पहली बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? mu1 ऐसे प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था बिफोर द कोलिजन, ये तो रेस्ट में था, 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। एरोज रखना जरूरी है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कोलिजन में, 1 डायमेंशनल कोलिजन में अगर एरो नहीं भी रखो कि चलता है, बिकॉज 1 डायमेंशन इज ए स्केलर, ऑलवेज इज ए स्केलर, स्केलर मैथमेटिक्स। 1 डायमेंशन में आप ले सकते हो विदाउट एरोज, लेकिन 2 डायमेंशन में एरोज रखने पड़ेंगे। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन 1/2 m u1 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशन से मैं ये एंगल निकालता हूं, ये थीटा एंगल, और ये साबित करूंगा ये 90 के बराबर है। चलो करता हूं कुछ, यहां पर ये खत्म, m खत्म होगा, 1/2 m 1/2 m 1/2 खत्म होगा। तो मेरे पास अब दो इक्वेशंस और हो गए, u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दो इक्वेशंस क्लियर, ये हो गया, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन है। अब जरा देखो, पहला इक्वेशन जो है इसको मैं स्क्वायर करता हूं, u1 स्क्वायर, u1 डॉट u1 u1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। ये ठीक है क्या? क्या ये ठीक है? तो फिर क्या फर्क हुआ, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या कहेंगे आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं कहूंगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b इसका स्क्वायर करो, आप क्या कहेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही गलत है, इट्स नॉट लाइक दैट। वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है उसका अगर स्क्वायर करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, a डॉट b होगा, ऐसे होगा। इसको स्क्वायर करने से ये बन जाता है, ऐसा मत समझो कि मतलब v1 v2 होगा। अब u1 स्क्वायर को ये सब्स्टिट्यूट करो, v1 स्क्वायर इसको ये सब्स्टिट्यूट करो प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 डॉट v2। ये खत्म, तो 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 डॉट v2, ठीक। तो v1 डॉट v2 किसके बराबर, 0। तो अगर v1 डॉट v2 0 है तो v1 और v2 के दरमियान इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान क्या एंगल होना चाहिए, जरा यहां मुझे बताइए। अगर आपने वेक्टर पढ़ा हो तो, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है मुझे बताइए v1 डॉट v2 अगर 0 है तो v1 और v1 v2 में क्या एंगल है, इसका फैसला करना, ठीक। इसका फैसला करते रहना कि अगर v1 डॉट v2 0 है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2। अब मैं ही बताऊंगा, थीटा शुड बी 90। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। यकीन ना आए तो देखो v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, ये होगा v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 तो होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90। वैसे डॉट प्रोडक्ट में पहले यही सिखाया जाता है, इफ a डॉट b इज 0 देन a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने साबित किया, व्हेन अ बॉडी hits another body of the same mass obliquely, they diverge at an angle of 90 degrees. This you must learn. अच्छा, ये पहला लेक्चर था। अब इसमें लेक्चर 2-4 तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन ये इसके लिए, इसको फॉलो अप करने के लिए मेरे ऐप पर जाना पड़ेगा, वहां कोलिजन्स का निकालना पड़ेगा, वहां क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स, उसका सॉल्यूशन सेट भी वहां मिलेगा आपको, लेकिन इसको उसके साथ टैग करना। जब मेरे लेक्चर यहां सुनोगे, वॉच करोगे, तो उसका जो बैकअप है वो ऐप में है। ऐप को डाउनलोड करके वहां जाकर के उस लिटरेचर को भी करने की कोशिश करो। आई विल बी सपोर्टिंग फ्रॉम हियर,
You'll be doing things from there, and things will be clear, and you can pass any exam you like at the national level. Thank you.